सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ समझते हैं। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कॉन एंड ट्रहेर। ट्रहेर मीन्स टू पुल। कॉन का अर्थ है साथ में और ट्रहेर का अर्थ है खींचना। Therefore, contract literally means to pull together. In its general legal meaning, a contract means bringing two or more persons into a legal relationship. The Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। It originally contained 11 chapters and 266 sections. साथ में नोट्स बनाते रहना स्टूडेंट्स। अब इसमें नोट करने वाली बात है तो ध्यान देना। Chapters relating to the Sale of Goods Act, Chapter 7, and the Partnership Act, Chapter 11, were later removed. विक्रय वस्तु अधिनियम चैप्टर 7 और साझेदारी अधिनियम चैप्टर 11 को बाद में इस अधिनियम से हटा दिया गया। Now, these are governed by separate acts. अब ये अलग-अलग अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। Now we come to the definition of contract under section 2H के अनुसार, an agreement enforceable by law is a contract. जो समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो वही संविदा है। This definition contains two essential elements. इस परिभाषा के दो मुख्य तत्व है। First is agreement. पहला है समझौता। Second is enforceable by law. दूसरा है कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना। The term agreement is defined under section 2E. E further refers to section 2B which talks about promise. धारा 2E आगे धारा 2B से जुड़ी है, जहां promise की परिभाषा दी गई है। The term enforceable by law is explained under section 10. कानून द्वारा प्रवर्तनीय होने की शर्तें धारा 10 में दी गई है। Section 10 tells us when an agreement becomes a valid contract. धारा 10 बताती है कि कब कोई समझौता वैध संविदा बनता है। So remember this important point. तो इस महत्वपूर्ण बात को याद रखें। Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. So next is every promise or every set of promises forming consideration for each other is an agreement. When two or more promises are made in exchange for each other, each promise is the value for the other, it becomes an agreement. जब दो या अधिक वादे एक दूसरे के बदले किए जाते हैं, एक वादा दूसरे के लिए मूल्य होता है, तो उसे agreement, समझौता कहते हैं। Proposal when accepted becomes promise. An offer, proposal, turns into a promise once it is accepted by the other party. जब किसी प्रस्ताव, ऑफर को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह promise वादा बन जाता है। 3. Promise is equal to proposal plus acceptance. A promise is created when an offer is made and the other person accepts it. जब प्रस्ताव दिया जाए और उसे स्वीकार किया जाए, तो मिलकर वह promise वादा बनता है। 4. चलो सबसे पहले ऑफरर और ऑफरी का मतलब समझते हैं। Offerer, the person who makes the offer. Offeree, the person who receives the offer. Offerer, जो प्रस्ताव देता है। Offeree, जिसे प्रस्ताव दिया जाता है। 5. An agreement is enforceable by law when it creates legal rights and obligations of the parties. An agreement becomes legally enforceable when it creates legal duties and rights for both parties. जब किसी समझौते से पक्षों के कानूनी अधिकार और दायित्व बनते हैं, तब वह कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। 6. Every agreement is not contract. Not all agreements are contracts. 7. केवल उन अनुबंधों को अनुबंध कहा जाता है जो कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं। केवल उन अनुबंधों को अनुबंध कहा जाता है जो कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं। Key concepts. A. Promise or agreement. A promise is an accepted offer where one person's promise acts as consideration, value for the other. Promise वह स्वीकार किया गया प्रस्ताव है जिसमें एक व्यक्ति का वादा दूसरे व्यक्ति के लिए मूल्य, consideration बनता है। B. Consideration. Something of value exchanged between parties. It must be more than just a gift. Consideration का मतलब है कोई मूल्यवान चीज जो पक्षों के बीच बदली जाती है। यह सिर्फ उपहार नहीं होना चाहिए। C. Contract. A contract is an agreement that the law will enforce. Contract वह समझौता है जिसे कानून लागू करता है। The flow, processus. 1. Offer, proposal. Example, मैं आपको 1 लाख में अपना कार बेच दूंगा। एक व्यक्ति ऑफर करता है, एक व्यक्ति प्रस्ताव देता है। 2. Acceptance. Example, I agree to buy your car. The other person accepts the offer. दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है। 3. Promise, offer plus acceptance. Once accepted, it becomes a promise. स्वीकृति के बाद वह वादा बन जाता है। 4. Agreement. Promise with mutual consideration. When both sides exchange promises with value, it becomes an agreement.
जब दोनों पक्ष मूल्य के साथ वादों का आदान प्रदान करते हैं तो वह अग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, अनुबंध का अर्थ है ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू किया जा सके। एनफोर्समेंट, प्रवर्तन, एनफोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1870, ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। एक्सटेंट, क्षेत्र, एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK, ये पूरे भारत में 1 सितंबर 1875 से लागू हुआ। जम्मू और कश्मीर सहित लागू है। नेचर ऑफ द एक्ट, अधिनियम की प्रकृति। दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीट और एग्जॉस्टिव, यह अधिनियम पूर्ण या संपूर्ण नहीं है। इट डिफाइंस एंड अमेंड्स ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये अनुबंध से संबंधित केवल कुछ भागों को परिभाषित और संशोधित करता है। प्रिंसिपल्स, नॉट राइट्स एंड ड्यूटीज, इट लेज डाउन प्रिंसिपल्स नॉट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज, यह अधिनियम सिद्धांत बताता है, अधिकार और कर्तव्य नहीं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज themselves डिटर्मिन राइट्स एंड लायबिलिटीज, अनुबंध करने वाले पक्ष अपने अधिकार और दायित्व स्वयं तय करते हैं। राइट्स क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध से उत्पन्न अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सनम, अनुबंध व्यक्तिगत अधिकार राइट इन पर्सनम उत्पन्न करता है। टाइप्स ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार। राइट इन रेम, सार्वभौमिक अधिकार। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जो अधिकार पूरी दुनिया के विरुद्ध लागू होता है। राइट इन पर्सनम, व्यक्तिगत अधिकार। राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, जो अधिकार किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के प्रकार। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर, अनुबंध हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्त अनुबंध। रिटन, लिखित, और ओरल, मौखिक। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, निहित अनुबंध, व्यवहार या परिस्थितियों से समझा गया।